Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking leads to knowledge. Knowledge makes you great. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today. To build this event, with this note, I would like to give my heartiest welcome to you all. It is my pleasure to introduce our respected chief guest, Mr. Rajiv Kumar Shukla sir, a highly energetic and enthusiastic educator, postgraduate trained teacher, major in mathematics, having 33 years of teaching experience, 13 years of administrative experience. Sir has shown ability in organizing students, CCE work on CBSE websites, academics, administrations, examinations, co-curricular activities, staff meetings, seminars, workshops, assume all responsibilities and many more in a CBSE school. Presently, sir is working as principal in a CBSE school, St. Emma Jaipuria, who has gracefully accepted our invitation to join us today. Thank you so much, sir, for coming and joining us today. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा वो टाइटल से कि पहले तो अपने मन से कुछ निकाल देंगे कि इस तरह का कुछ सेमिनार है, सीबीएसई का है, कुछ सीखना है, वैसा कुछ नहीं। सिंपल एक वार्तालाप है, ये सिंपल कन्वर्सेशन है एक यंग एजुकेटर और एक सीनियर एजुकेटर के बीच में। यंग एजुकेटर्स में एनर्जी बहुत है, टाइम है, अनुभव का अभाव, एक्सपीरियंसेस लैक। हम लोगों के पास अनुभव है, अब एनर्जी का अभाव होने लगा है। एज वी मूव फर्दर, ये जो ऊर्जा है वो लगता है कि धीरे धीरे कम हो रही है और नेचुरल है प्रोसेस है। पहले तो मन से निकाल में ऐसा कुछ यहाँ के कुछ सीखने के लिए बैठे, ये मन से निकाल में बिल्कुल एक सिंपल समझिए कि एक छोटे भाई बहनों से जो बड़ा भाई बात कर रहा है, बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेशन थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सर 9:30 to 11:30 चलेंगे। सेशन में 11:30 तक भी होते हैं, 30 minutes after that 12 to again will be. As a senior teacher, when I started to have a conversation with my investors, then I found that on the very first day, the principal appoints you and gives you a good timetable, and thus you reach the class and you become a teacher. But I have a question mark on yourself. Really, you are a teacher of that? No. Teachership, it comes by years and years and years. It takes 2-3 years for a teacher to learn what syllabus they have to teach in the class. First and foremost thing is that teacher is a master. He should be master in his or her subject. How the mastery comes? It comes by the repetitive class. One year you teach the same syllabus, next year you teach the same syllabus, again the next year you teach. By teaching again and again, just you have a good command over the subject in what way you have to teach. After the next system comes pedagogy and the child dealing and the class environment, the school management and other parts. They comes later, not on the very first day. Personally, I think if I do the conversation, that's okay. मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी बात दिल से दूर तक पहुंचनी चाहिए। उसके हिंदी एक अच्छा माध्यम रहेगा। हम बाइलिंगुअल चलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस प्रॉपर नहीं आते मुझे। First thing is that the one who teaches is not a teacher. First and foremost thing is that अपने को पहले दिन से ही टीचर समझने की गलती ना करें। ये बिल्कुल मन में नहीं आया कि आज मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है और आज ही हम टीचर हो गए हैं। ऐसी विचारधारा हमें मत आने दें। It takes 6 to 7 years approximately when you become a good teacher. तो आज जो सारा वार्तालाप है आज टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, नाम ही रखा हुआ उसका कैपेसिटी बिल्डिंग। आपकी क्षमताएं बढ़ाई जाए। क्षमताएं बढ़ाने का मतलब क्या है? जो आप आज हैं नेक्स्ट स्टेज उससे बेहतर इंसान बनने की प्रयास करिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे आता है। एक पेड़ लगाते हैं हम, वो पहले दिन ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसकी बहुत सारी नर्सरिंग करनी पड़ती है, हवा पानी धूप सब दिखाना पड़ता है, फिर कुछ सालों बाद उसका तना मजबूत होता है, फिर वो वृक्ष बनता है। ये प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति से सीखें, इससे बेहतर कोई टीचर है नहीं हमारे पास। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट अगेन जैसे बात है टीचर, टीचर क्या है, हमारी मनुस्मृति कहती है, पौराणिक सबसे पहला काव्य आता है, वो कहता है सा विद्या चा विमुक्ति, विद्या वो है जो मुक्त करे। मुक्त होने का मतलब क्या? हम स्कूल में दाखिल होते हैं और प्राउडली कहते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर हम राष्ट्रीय में आ जाते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छी जाति से आता हूँ, हम 20 दूसरों के प्रति ऐसा वो विमुक्त हो, मतलब if teacher is bounded with any type of ism, it can't be a good teacher in any of his life. आप सिर्फ अध्यापक बनिए। अगर आपने अपने ऊपर जाति के टैग लगा रखे हैं, रिलीजन के टैग लगा रखे हैं, तो आप कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। You become biased in the class. जब आप क्लासरूम में बच्चों से डील कर रहे होंगे, आपको लगेगा ये मेरी बुआ का भतीजा है, ये मेरी बिरादरी से आता है, इसके नाम पे आगे शुक्ला लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा नंबर देने हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए। किसी भी टीचर को विद्यालय में कदम रखते के बाद ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, वो सिर्फ एक टीचर है बच्चों के साथ। ये बात जितनी जल्दी हो सके मन में बिठाइए और इसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करिए। टीचर एसेट सम फॉर मास्टर। पुराने समय में अगर आप याद रखो, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, ये व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, हम मास्टर शब्द लगाते थे अध्यापक के आगे, मास्टर साहब हैं। हम टेलर मास्टर को भी टेलर मास्टर कहते हैं, हम स्टेशन मास्टर को भी स्टेशन मास्टर कहते हैं। Why these master words are used? मास्टर मीन्स उसको मास्टरी है वैसे एरिया में। अगर वो स्कूल का मास्टर है तो स्कूल के बारे में उसको मास्टरी है। तो वो टेलर है, कहा जाता ना कि टेलर मेक्स मैन जेंटलमैन। अभी लोग आपको रेडीमेड गारमेंट से जमाना है, कस्टमाइज टेलरिंग महंगी होती चली जा रही है, बट इन व्हाट वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, टीचर को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मास्टर मीन्स यू मस्ट बी मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। हम टेलर को भी टेलर मास्टर कहते हैं, स्टेशन को भी स्टेशन मास्टर कहते हैं। तो ध्यान दिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल टीचर एंड स्टेशन मास्टर। स्कूल टीचर ट्रेन्स द माइंड, बट स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन। छोटे डिफरेंस ध्यान दीजिए। जब कभी बच्चों को पढ़ाते हैं आप बताते हैं कि ये मेथड है, मैंने किया हुआ है, याद करना। मान्यवर अपने दिमाग में अच्छे से बैठाइए, दुनिया का कोई मेथड आपका मेथड नहीं है। विचार आते जाते रहते हैं। आपको जब विचार मिले थे उससे पहले भी आए थे कहीं धरती पर। अच्छी किताबें पढ़िए, आप अपने बारे में गलतफहमी दूर हो जाएगी कि यहाँ पर ये ओरिजिनल थॉट है। आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं उससे पहले डिस्कस हो चुका होगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाईवे से बस ट्रक ट्रेन सब निकल रही है, दिख रही है यहाँ से साइड व्हीकल जाते हुए। ऐसे विचार आते हैं मन में, कौन सा विचार पहले गया, कौन सा विचार बाद में आया, कौन सी साइकिल पहले निकली, मोटरसाइकिल पहले निकली, कार पहले निकली या बाद में गई, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप माध्यम हैं, सड़क माध्यम है विचारों के, रोड्स के गुजरने के, वाहनों के गुजरने का। ऐसे ही मानव मस्तिष्क केवल माध्यम है विचारों के आने जाने का। उसमें ये कह देना, सड़क पर कोई बोल दे गाड़ी मेरी, क्यों, मेरे से होके गुजरी, ये गाड़ी तो मेरी हुई, गलत। मेथड आपका नहीं हो सकता। व्यक्ति मर जाते हैं, विचार जिंदा रहते हैं। विचारों पर चलिए। विवेकानंद आज भी सार्थक है। अभी G20 मीट हुआ दिल्ली में, आपने देखा, आज सोशल मीडिया गांधी की आलोचनाओं से भरा रहता है। देश में बीजेपी की सरकार है, RSS संगठन है, गांधी जी की बहुत आलोचना होती है, लेकिन आपने ध्यान दिया
G20 में 20 राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे और नंगे पांव राजघाट पे गांधी की समाधि पे चले गए। क्यों? कुछ बात तो होगी ना उनमें कि 70 साल होने के बाद भी, उनके ना रहने के बाद उनके विचार जीवित हैं, सार्थक हैं, आज चलो। बाध्यता इसकी नहीं कि ये मेरा है मेथड, बाध्यता ये कि वो सही मेथड है, सही होगा, सार्थक होगा, आपके बाद भी जाना जाएगा, चलता रहेगा। इस गलती से बचें कि तुमने मेरे वाले मेथड से नहीं किया। गलती करते ना हम लोग क्लास में कॉलेज करते हैं, बच्चों को बात करते हैं, ये है तो सही, लेकिन तुमने मेरे वाले मेथड से नहीं किया। भाई साहब, मेरा वाला मेथड कोई है नहीं। सारे के सारे मेथड उस सब्जेक्ट के मेथड हैं, उस मैथमेटिक्स के मेथड हैं। Good teacher is still, if you talk to the management, talk to the principal, every school is facing a biggest problem of finding a good teacher. अच्छे टीचर मिलते नहीं। मुझे क्षमा करें, आप लोग जिस तरह के बीएड कॉलेजेस से अपनी डिग्रीज लेके आते हैं, वो सारा काम पांडे जैसे हम लोगों को करना पड़ता है। हम तो अपने स्कूल में मजाक भी करते हैं टीचर से कि जितना तुम्हें हम ट्रेन करते हैं, उस नाते तुम्हें अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमें देना चाहिए। तुम बीएड कॉलेज से ट्रेन हो गए तो आए नहीं, तो हम ही तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं यहाँ, तो कुछ पैसा मेरे अकाउंट ट्रांसफर किया तो नहीं, जो हम मीटिंग से हमें ज्ञान देते रहते हैं। आज में तुम्हें बीएड कॉलेज से लेके आना चाहिए, हमें पढ़ाना पड़ता है। तो गुड टीचर इज स्टिल ए स्केयर कमोडिटी। जब किसी संस्थान को, सीनियर लोगों को जो अच्छे टीचर मिलते हैं, तो हमें सहेज के रखने होते हैं, उनको पॉलिश करना होता है, उनको तराशना होता है। वही काम शिक्षक को क्लासरूम में बच्चों के साथ करना होता है। मैं अपने सारे तजुर्बे के बाद आज ये कहता हूँ कि शिक्षक एक मूर्तिकार की तरह होता है, वो शेप करता है अपने बच्चों को। तो जब हम ये कहते हैं कि शिक्षक एक मूर्तिकार होता है, तो आप सोचो तो क्या मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है? कितने लोग कहते हैं इस बात से कि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है? आप भाई नहीं बना, वो मूर्ति पहले से उसमें विद्यमान है। गुड, ये थॉट है बेस्ट। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार प्रजापति। बहुत बढ़िया, बेहतर थॉट जल्दी समझते हैं आप। वो सिर्फ एक अनगढ़ पत्थर उठाता है अपने सभी, और उस पर बाहरी चीज़ें छेलियाँ थोड़ा से ठोक के निकाल देता है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, इररिलेवेंट है, उसको वो ठोक के बाहर गिरा देता है, मूर्ति अंदर से निकल के आती चमक उठती है। वही काम शिक्षक को क्लासरूम में करना होता है बच्चों के साथ। वो बच्चे राह हैं, अनगढ़ पत्थर हैं, उनका भी डांट डपट के डिसिप्लिन जो हम स्कूल में लगाते हैं, डिसिप्लिन का क्या मायने हैं कि लाइन में चलो, ऐसे मत करो, ये मत करो। वो सिर्फ बाहरी मिट्टी हटाना है, तो जो कुछ अंदर होगा, टैलेंट होगा, वो निकल के बाहर आएगा। तो कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता नहीं है, मूर्ति उस पत्थर में पहले से छिपी होती है, केवल बाह्य आवरण हटाने होते हैं। शिक्षक का मुख्य दायित्व है मूर्ति बना लिया, मैं पहचान ली। अब एक और बेसिक थॉट आता है एजुकेशन में, प्रतिभावान होना दुर्लभ है। 40 की क्लास में 40 बच्चे प्रतिभावान होते हैं, मान के चलिए। कंपटीशन जो है वो क्लास में 40 बच्चों के बाद 4 बच्चों में होता है। प्रतिभावान होना, ये बच्चा प्रतिभावान है, ये टीचर है, कैसे पहचानेंगे? आपके पास कंप्यूटर टेस्ट है, डेली इन्वेस्टमेंट्स, क्लासरूम, पेडागोजी, मेथड्स, सिलेबस, एग्जाम पेपर। मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है टीचर से कि अपने अच्छे बच्चों को पहचानें। विद्यालयों में भीड़ है, यहाँ कितने रहते हैं बच्चे में। जब रिजल्ट आता है बोर्ड या मिशन का, हमें उस वक्त पहचानने होते हैं। उन बच्चों को पहले से पहचान के उन पर काम किया जाए, ये सजेशन है। तो प्रतिभावान होना दुर्लभ है और प्रतिभा की पहचान दुर्लभतम। क्लास में बच्चे प्रतिभावान आएंगे आपके पास, लेकिन उस दुर्लभतम होने को अगर आप पहचान पाते हैं, मेरे कौन से बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं, उनको उस काम में लगाया है। ईश्वर ने इस धरती पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा नहीं है।
ये मैं आपको अपने अनुभव से पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, एग्री, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सारे सब्जेक्ट में, चलो ये मान लिया कि सारे सब्जेक्ट में एवरेज है, फिर ये मानने को तैयार नहीं हूँ मैं किसी को करियर एक्टिविटीज में वो बेस्ट नहीं हो सकता है उसका डांस अच्छा आता हो सकता है उसका गला अच्छा हो, गाना अच्छा गाता हो सकता है वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हो सकता है वो रेसेस में बहुत अच्छा हो, गेम्स में बहुत अच्छा हो, लेकिन ये मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि उस बच्चे में कोई प्रतिभा नहीं। ईश्वर ने ऐसा कोई बंदा होती भेजा नहीं, बस हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं क्लास में। Teachers have a major role in the classroom. They have to identify the talent and work on that. That's the main thing. Feel enthusiastic. कभी जीवन में ऐसा मत सोचे कि अरे अब हमारी उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, आज संडे है, आज भी दिन खराब हो गया, आज छुट्टी का दिन था, आज बुला लिया। Always feel enthusiastic. जीवन में अगर आप 1% भी कल से बेटर करते हैं, आज मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, एक्सपोनेंशियल जिनको आता हो, जो क्लास 11 में पढ़ा रहे हो, मेरी बात को बेटर रिलेट कर पाएंगे। तो e टू पावर x का कैलकुलेट करेंगे आप, सिर्फ पावर बन गया, तो आप पाएंगे कि साल के 365 दिन बाद आप 37% बेहतर इंसान बन चुके हैं, और आप सिर्फ 1% बेटर होते हैं। और इसका उल्टा भी है, अगर हम निगेटिव होते हैं तो फिर निगेटिव बढ़ा लेंगे। सर मुझसे बात कर रहे थे कि आप हमेशा संडे को मिले मुझे सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, कभी इस स्कूल में आके लगता है कि 6 दिन काम किया, संडे मिलना चाहिए, तो मुझे पता नहीं कि ऐसा जीवन में होता नहीं है। इधर मैं अपने कॉलेज डेज की बात करूँ, मैं टीचर है, बस शुरू के 3-4 साल मैंने बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े, बहुत परेशानियाँ टीचिंग में होती हैं, क्योंकि सारे का सारा मामला एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है और वो हम करने को तैयार नहीं होते। But after that, when I just realized what is teaching, what is teacher, what is the role of a teacher, how important we have, important role in the student life, तो चीज़ें समझ में आने लगी, जीवन बदलने लगा वहाँ से। तो शुरू के 4-5 साल निकाल में, उसके बाद मैं कॉलेज गेट के अंदर कदम रखता हुआ, और कॉलेज गेट से बाहर निकलने तक मैंने हर मिनट को यूटिलाइज किया। लेकिन मेरे बच्चे वेट करते थे, मैं बोलता था 30 मिनट्स का एक ब्रेक है, लंच ब्रेक है, मैं लंच लाता नहीं, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, जाके खाना खाता हूँ, मैं फिर आता हूँ, चाय पीने के बाद आता हूँ पैड बुक्स में, आप अपनी बुक्स वापस लेके आ जाएगा, जो क्वेश्चन है जितना आपको आता है उतना कर लाएगा, मैं बता दूँगा आगे कहाँ करती है, तो मैं साफ कर दूँगा। कितना देर रिलैक्स हम लोगों का इसलिए होता था 20 मिनट्स का, तभी मैं बोलता था कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, जिसको आना है 10 मिनट जाए, अपना कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते। The meaning is that if you are a teacher, you have a major role in the student life. What are that? Always feel enthusiastic. हमेशा उत्साही बने रहिए। बच्चों को इंतजार होना चाहिए कि राइट सर आने वाले आने को बैठे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे देखो, अभी सितंबर मैं कंप्लीटेड 55 इयर्स, और मैं अपने आप को 55 को मानता ही नहीं। आज भी मैं मानता हूँ मैं 22 साल का हूँ आज, बस 33 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं भी अपने क्लासरूम में, अपने कैंपस में जहाँ भी होता हूँ, पूरी ऊर्जा से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम करता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ, और मुझे कभी लगता ही नहीं है ये एज बढ़ रही है, एज इज जस्ट ए नंबर। अगर हमने लाइटर मोड में बोलूँ, थोड़ा मजाक की भाषा में कहूँ, कहते हैं कि महिलाएं, फीमेल्स, they are as young as they look। लेकिन हम लोगों का क्या है, जब लोग जितना फील करते हैं, हम उतना यंग हैं। सर ने इतनी तारीफ कर दी, मेरी फीलिंग्स के चेहरे पे स्माइल नहीं है। वो सोचना बहुत सीरियस बात हुई ना, मैं शुरू में कहा था कोई सीरियस बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक मान के चले बड़ा भाई बात कर रहा है। एंथुसियाज्म की बात हो रही है, तो दिखना चाहिए आपको। वो पहले से एक लोड ले लिया ना सब में, सर आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोड नहीं देना है किसी को, बिल्कुल आराम से बातचीत करिए। जब क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों से एक अच्छा रिलेशन बनाइए, बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, रिलेट करिए बच्चों से।
रिलेशन का मतलब क्या है? जब आप क्लास में जा रहे हैं, ना बच्चे को जानते हैं ना आप बच्चों को जानते हैं। हमारे पौराणिक शास्त्र बहुत अच्छे हैं, उनमें इतनी अच्छी बातें हैं वो निकालने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी बातें बहुत स्कूल प्रांगण में दीवारों पे लिखी होती हैं, मंदिर के किनारे लिखी होती हैं, सारे पूजा स्थलों पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। उससे हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज भी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जब तक हम लोग खत्म करेंगे इसको तब तक 100-200 अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार डिस्कस कर चुके होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, उन विचारों से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हाँ, 8-10 बातें भी अगर समझ में आ गई और उनको हमने अपने जीवन में कल से लागू कर दिया, 100% जीवन बदलने वाला है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अच्छे विचार डिस्कस हो जाएंगे, बातें हो जाएंगी, उससे कुछ नहीं। अगर किताब में लिखा हुआ ज्ञान आपका होता तो लाइब्रेरियन इस धरती पर सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता। इसके बाद सबसे बड़ी किताब है लाइब्रेरियन कौन है? यहाँ स्कूल में कौन है? हाँ बताइए। हाँ है नहीं सर ऐसा? आपके पास तो कितनी सारी किताबें हैं लाइब्रेरी में, है ना? लेकिन वो सारा ज्ञान आपका नहीं है। आपका ज्ञान कौन सा है? अपना सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट। जैसे मैं मैथमेटिक्स से पढ़ा रहा था, क्लास 6 से 12 तक की क्लासेस के लिए मुझे पढ़ाने हैं, तो मैं धीरे धीरे जो क्लास 4-5 की चीज़ थी भूलने लग गया। लेकिन मैं बेटे को पढ़ा रहा था क्लास 4 में, जब उसको मम्मी ने बता रखा था कि तुम्हारे पापा मैथ्स के टीचर है, तो उससे मुझसे जाने के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन कुछ पूछ लिया उससे, और मुझे अचानक याद ही नहीं आया। तो मैं तो इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास, तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही नहीं याद आया कि इक्वल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या डिफरेंस है इसमें। तो मैंने कहा भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने बुक लेके आओ। तो 3rd क्लास से 4th क्लास में था, उसने मेरा बहुत मजाक बनाया, मम्मी आप ऐसे कहते थे पापा बहुत अच्छे टीचर हैं, पापा को कुछ नहीं आता। बड़ा मीनिंग होता है, मीनिंग ये है ज्ञान का उतना हिस्सा ही सार्थक है जितना उपयोग में लाया है। बातें पकड़िए, ज्ञान का मतलब क्या हुआ? उतना ही हिस्सा सार्थक है जितना उपयोग में लाया है। आप इस पूरे ब्रह्मांड में इतना सारा ज्ञान है, आपका मतलब क्या है? वो लॉन्ग कोर्स इस्तेमाल करते हैं, फोकस है उससे। फिर से हम वापस अपनी बातें जब क्लासरूम में पहुंचते हैं, क्लासरूम क्या है? एक अननोन साइड है, आपको पता नहीं बच्चे अंदर कैसे मिलेंगे। हमारे पुरातन शास्त्र कहते हैं ऐसा, अभी वहाँ आपने बोला भी था, तमसो मां अंधकार से प्रकाश को चाहिए। अंधकार क्या है? ज्ञान नहीं। प्रकाश क्या है? ज्ञान। अननोन टू नोन की जो यात्रा है, यही टीचर के लिए वास्तविक यात्रा है क्लास में। फिर वही बात मैं मजा करूँगा, बीएड करके आते हो, लेसन प्लान नाम सिखाते हैं। अगर एक टीचर अपना एकेडमिक कैलेंडर स्कूल में देख ले, प्रिंसिपल ने ये एकेडमिक कैलेंडर दिया है, आपको सेशन शुरू कर रहे हैं, मई में एग्जाम लेंगे P1, ये जुलाई में लेंगे, सितंबर में हाफ ईयरली होता है, अक्टूबर में दशहरा दिवाली की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर P2 एग्जामिनेशन होना है नवंबर-दिसंबर में, फिर रिपोर्ट्स होना है जनवरी में, फिर सेशन एंड एग्जाम आ रहा है मार्च में। अगर आप इसको एक वैल्यूएबल थॉट की तरह अपने लेसन प्लान में कहीं पर लिख लें कि व्हाट आर द वर्किंग डेज फॉर यू, आपको इस सत्र में कितने कार्य दिवस मिलने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने लेसन को प्लान कर लें, तो ये आपका सिलेबस है। आपको 8 चैप्टर पढ़ाने हैं, तो आप 4 फर्स्ट हाफ में पढ़ाओगे, 4 सेकंड हाफ में पढ़ाओगे, 2 P1 में पढ़ाओगे, 2 P2 में पढ़ाओगे। और कितने लेंथी चैप्टर्स हैं, चैप्टर से आगे अगर उनकी एक्सरसाइज के नंबर भी लिख सकें, ये चैप्टर 1 है, इसमें 8 एक्सरसाइज है, ये चैप्टर 2 है, इसमें 3 एक्सरसाइज है। तो चैप्टर 1 देर में खत्म हो पाएगा, चैप्टर 2 जल्दी खत्म हो पाएगा। लेसन प्लान का मतलब सिर्फ उस लेसन का प्लान नहीं है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन प्लान का मतलब थ्रू आउट द ईयर प्लानिंग है आपकी। वो तो जो टीचर इस प्लानिंग को इतना बेहतर कर लेता है, क्लासरूम में उसकी पकड़ दिन पर दिन उतनी मजबूत होती चली जाती है,
उसको पता होता है कि चैप्टर 1 पढ़ाना है, मुझे 10 में खत्म करना है, चैप्टर 2 पढ़ाना है, मुझे 6 में खत्म करना है। मैंने शुरू में कहा था पहले से 2-3 साल तक आप अपना सिलेबस नहीं जान पाओगे कि पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। किस बात पे नए टीचर आते हैं क्लासरूम में, जो इररिलेवेंट पार्ट होता है, बोर्ड जिस पे 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है, उसको 4 तक पढ़ाते हैं क्लासरूम में। और बोर्ड जहाँ से 7-8 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको वो सिर्फ एक बार बता के स्टूडेंट छोड़ देता है। ये शुरू के 3 साल में सीखना होता है कि किस चीज़ को कितना एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे जोर देना है और कौन सी बात सिंपल समझा के छोड़ देनी है। क्लासरूम को एक्सपेंड करते हैं हम पढ़ाते वक्त। जब पाठ पढ़ाया जाता है तो उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल, सारी बातें समझाते हुए हम चलते हैं, जैसे उनको हम विस्तार देते हैं। क्या हम रिवीजन में भी वही काम करते हैं? नहीं करते। रिवीजन में क्या करते हैं हम? जो पार्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम रिवीजन में वो चीज डिस्कस करते हैं। इसको जल्दी से जल्दी सीखिए। जब क्लासरूम में पहुंचते हैं अपनी प्लानिंग के साथ, पूरे साल की प्लानिंग के साथ, चैप्टर की प्लानिंग के साथ, एक्सरसाइज की प्लानिंग के साथ, होमवर्क की प्लानिंग के साथ, सारी चीज़ों के साथ तैयार होकर क्लास में जाएंगे। बिकॉज इन द एजुकेशन साइकोलॉजी इट इज सेड दैट नथिंग इज सो हैडल फॉर अ टीचर एज अ प्रिपेयर्डनेस। हर वो टीचर जो क्लासरूम में बिना तैयारी के साथ जाता है, वो अपना तो नुकसान करता ही करता है, बच्चों का उससे ज़्यादा नुकसान करता है। You go to the class, expand thoroughly whatever you know. Let the child know that you know. बच्चे को पता होना चाहिए उसे टीचर को आता है। If they are asking some extra relevant information, इसलिए भी बताओ उनको। जब लेसन पढ़ा रहे हो, उसको विस्तार दे रहे हो। रिवीजन के टाइम नहीं वो बातें होंगी, रिवीजन टाइम सिर्फ एग्जामिनेशन रिलेटेड बातें होंगी। लेकिन जब पार्ट को विस्तार दिया जा रहा हो, आप सारी चीजें डिस्कस करें। लेसन प्लान जैसे सीबीएसई सिखाती है, जैसे बीएड कॉलेज सिखाते हैं, अगर हम वैसे बनाने लग रहे हैं तो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 33 इयर्स बैक फ्लैश बैक में चलते हैं। मैंने अपना लेसन प्लान बनाया, मैथ साइंस दोनों बीएड सब्जेक्ट थे हमारे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चों से पूछेंगे, पहले प्री रिक्वेस्ट नॉलेज होती है ना, 8 से पहले वाले प्रश्न पूछे जाए, पूछा बच्चे से हमारे घर में इसकी कहाँ से आती है, कहाँ से आती है ना, हाँ नहीं मान के चलो कि बच्चा बताएगा कि कौन लगा है, वहाँ से तार जुड़ी हुई है, वहाँ से जुड़ी हुई है। तो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा अपना हाँ बोलो सर मेरे मामा पे है सर। I was not expecting at all. This answer I was ready to hear that. आप तैयारी नहीं हो आंसर सुनने के लिए, आप एकदम बहुत जाते हैं अंदर से। अच्छा मामा के घर से कैसे आती है? कुछ नहीं सर, जब बिजली चली जाती है ना, मेरे पापा गाली देते हुए कहते हैं सालों में बिजली करवा दें। सारे दोस्त के बच्चे मामा ही होते ना। ऐसे इररिलेवेंट आंसर सुनने के लिए तैयार रहिए क्लास में। टीचर who is going to accept all the concerned irrelevant answers in the classroom, he can be a good teacher. अगर आप उसको नॉलेज पे बिठा देंगे तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे। तो जब क्लास में आप इररिलेवेंट आंसर सुनने के लिए भी तैयार हो, इतने भी वाले टीचर। एक और बहुत मेरा साथी है, मूल पढ़ाने के लिए सी कपाड़ था, दूसरे दिन मैंने पूछा जाड़ा के दिन थे, वो हम लोग उसमें ज़्यादा लगते थे, टीचर कम ज़्यादा बढ़ जाता है, होली बोर्ड होता था, जाके क्लास में बना होता था, प्राइस होती थी, टीचर होती थी, 30 डेज रेगुलर क्लास में टीचिंग थी, 60 यूनिट्स, 60 लेसन था रेगुलरली। मैंने पूछा बच्चे स्वेटर पहन के आए होते हैं, हम सिखाया जाता है टीचर ने, बच्चे से पूछना है स्वेटर कहाँ बना हुआ है, बच्चा बताएगा कि से बना हुआ है, तो पूछना उससे कि ऊन कहाँ से मिलती है, बताएगा भेड़ से मिलती है, भेड़ ना पाई जाती है, लक्ष्मी पाई जाती है, फिर मैं लेसन शुरू करता हूँ। पूछा बच्चे से स्वेटर किससे बना है? बच्चे ने बोला मेरे पापा का पुराने स्वेटर से। पढ़ा लो। कहने का मतलब ये है कि एट दैट टाइम इन द एज ऑफ 22 आई वाज रेडी टू लिसन। मैं तैयार नहीं था इस तरह के आंसर सुनने के लिए, आज तैयार है। आज मुझे बच्चे रिलेवेंट आंसर देते हैं, मुझे कोई उलझन नहीं होती, मैं इतना सारी परेशानी होता है, मैं उसके दिमाग तक जाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा क्यों भूल जाए, और द रीजन बिहाइंड दैट, बच्चा ऐसा आंसर क्यों कर रहा है।
लेकिन आप 22 की एज में ये आंसर एक्सपेक्ट करने के लिए क्लासरूम में तैयार नहीं होते। मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ तैयार रहिए। इफ यू आर टीचर ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल द आंसर्स गिवन बाय एसी। बच्चे के हर आंसर को सुनने के लिए तैयार रहिए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, नाराज नहीं होइए। जब बच्चों से रिलेट करने की बात कर रहे हैं, कुछ टीचर यहाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे होंगे मैथमेटिक्स से, क्लास 6-7 में शायद प्रोबेबिलिटी शुरू हो, तो हम जाते हैं बच्चों को बताते हैं फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मैथ्स टीचर हैं यहाँ पे, मैथ्स टीचर हैं, हाँ ऐसे करते हैं ना सर हम। लेकिन हम में से कितने टीचर ऐसे हैं जो डाई क्लास में लेके जाते हैं, लूडो की डाई, हर बच्चे ने लूडो खेला हुआ है बचपन में, अब तो बच्चे ऑनलाइन खेल रहे हैं, हमने समझा बचपन में लूडो खेला हुआ है छुट्टियों में। कितने लोग हम डाई लेके जाते हैं और बच्चे को बताते हैं कि देखो ये स्टैंडर्ड डाई है, स्टैंडर्ड डाई क्या खास बात होती है सर, कि स्टैंडर्ड डाई की क्या खास बात होती है, क्या उसमें स्पेशलिटी क्या है डाई में? नहीं आप परेशान मत होइए, मैंने कहा बड़ा भाई बात कर रहा है, बस आप परेशान मत होइए, आपका इम्तिहान थोड़ा ना हो रहा है, आप एग्जाम थोड़ा दे रहे हैं कि कुछ गलत हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से कीजिए। सर उससे पता चलता है कि हमें कितने उसमें सर्विसेज और कोई डाई की स्पेशलिटी दूसरे टीचर बताएंगे इस डाई की स्पेशलिटी क्या है? एज अ क्यूब होता है सर। ठीक है, और दस प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम 1 to 6, कोई भी नंबर आ सकता है। 6 ठीक, और कुछ एनीबॉडी? उसको ऐड करने पर अप एंड डाउन का 6 आएगा। 6 आएगा नहीं, फिर से थोड़ा मैथमेटिक्स में जोड़ डालिए। आप सही हैं, सही ट्रैक में हैं, फिर से सोचिए उसको, फिर बताइए। 7 ठीक है, गुड, थैंक यू मैम। तो अगर आप बच्चों को बताते हैं बेटा स्टैंडर्ड टाइम देखिए तुमने, हाँ बिल्कुल कहता हूँ, उसे अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7। तो दैट क्रिएट्स एंथुसियाज्म इन द चाइल्ड। बच्चे का माइंड करती हो जाता है, अच्छा ऐसा होता है, मैं तो रोज कहता हूँ ध्यान नहीं दियो। बच्चे मन में क्या आएगा, मैं रोज खेलता हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया, घंटा के सबसे पहले चलता हूँ। आप डाई ले आओ क्लास में, बच्चों को दिखाओ, देखो बेटा ठीक है, पीछे यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा अगर मैं बात करूँ। जैसे मैं गैम्बलिंग यकीन नहीं करता, मैं जुआ नहीं खेलता, लेकिन यकीन मानो जब मैं जुआ खेलता हूँ मैं जीतता हूँ। 52 पत्ते उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है, कलर का रोज जाता है, 3 पत्ते एक साथ आएंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स है उसकी हर चीज़। मैं कभी जुआ नहीं खेलता तो मेरा भाग्य में यकीन नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरा भाग्य बहुत मजबूत होता तो मैं शायद माने के घर पैदा होता, लेकिन मेरे पिताजी साधारण टीचर थे, इसलिए मेरा भाग्य में यकीन नहीं है, मेरा हार्ड वर्क में हमेशा यकीन था। और दूसरी बात, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल मैथमेटिकल है, आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं किन पत्तों में कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। बच्चे को थोड़ा सा अगर रिलेट कर लेंगे तो आपको क्लासरूम ईजी हो जाएगा। अब बच्चा प्रोबेबिलिटी में आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपके साथ चल रहा है राइट के साथ, ठीक है। ऐसे ताश के पत्तों के बहुत सारे गेम हैं। मैं क्लास में ताश के लेकर पढ़ाता था, मेरे टीचर्स क्रिटिसाइज करते थे मुझे, शुक्ला जी का क्या टीचिंग अच्छा नहीं है, तो क्लास में ताश खेलना सिखा रहा हूँ। मैंने भाई क्वेश्चन है, क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हैं, उसमें से एक इतना निकालने का राइट का क्या है? तू नहीं पढ़ाएंगे बेटे लेके क्लास में, बिल्कुल पढ़ाएंगे। दैट इज लर्निंग टू केला में हमारा वो केला समझते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल, लर्निंग मॉड्यूल है हमारा। क्लास में 3 चीज़ों की रिलेटिविटी होती है, आप वो सब चीज़ें क्लास में लेके जाइए, क्लास में से बाहर निकलिए, बच्चों को रिलेट कराएं। जितना बच्चे रिलेट करेंगे उतना बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। एक नर्सरी क्लास में टीचर क्लास शुरू करता है, पुरानी बुक्स में लिखा हुआ आ रहा है जमाने से, आ से अनार, बड़ा से आम, ई से ईख। मैंने अपने पूरे जीवन काल में अगर पिताजी वाले जनरेशन को जाने दूँ मैं, तो मैंने किसी के मुंह से ई से ईख सुना नहीं है, किताबों में लिखा हुआ। इरेलेवेंसी क्यों है? जो किताबों में लिखा हुआ है अगर वो बच्चा अपने आसपास नहीं देख रहा है तो भाई साहब बात मानिए वो नहीं सीखता। अगर वो आ से अनार पढ़ रहा है, घर में भी आ से अनार उसको दिखाई पड़ रहा है तो वो सीख रहा है। अगर वो ई से ही क्लास में पढ़ रहा है और बाहर गन्ना पढ़ रहा है, उसको गन्ने की गाड़ी जा रही है, गन्ने का ट्रक है,
वो ई से ई वरना कभी जोड़ नहीं पाएगा। उनको क्लासरूम में वही सिखाएंगे जो एक्चुअल लाइफ में बाहर हो रहा है। जितनी प्रैक्टिकलिटी के साथ आप क्लास में जाएंगे, रिलेट करेंगे, उतना बेहतर टीचर आप दिन बनते चले जाएंगे गारंटी में। बच्चे को हम बोलते हैं गाय के निबंध लिख के लाओ, बच्चे ने गाय लिखेंगे, हम आपको बताते हैं उससे आकर होते हैं, जो कुछ होती है गाय दूध देती है। इससे बेहतर है बच्चों को किसी दिन सर से बात करिए, आपके पास स्कूल गाड़ियाँ हैं, वो गौशाला की विजिट कराइए, उनको छूने देखिए, गाय पे हाथ रख के देखने दीजिए उनको, फिर वापस आके बताइए कि गाय पे 10 लाइन के निबंध लिखे। आप देखिए वो बेटर लिखे, आपसे बेहतर लिखे, जो आप नहीं सोच पाएंगे वो बच्चे लिखते रहेंगे। क्यों? वो अपने सामने देख रहे हैं ना उसको। क्लासरूम को बोझिल मत बनाइए, जितना लाइव रख सकते हैं क्लासरूम को उतना लाइव रखिए। आप देखेंगे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्लास 3rd 4th की बुक में नहीं लिखा हुआ है यातायात साधन में क्या क्लास में पढ़ा नहीं है, हमें पढ़ाया यातायात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द व्हीकल्स वी यूज to go from one place to another place are known as means of transport. For example, bus, train, etc. तो बच्चा etc भी याद कर लेता है। बड़े बच्चे etc से याद करते हैं, उनको ज़्यादा एग्जाम्पल आते नहीं हैं तो etc लिख देते हैं कि मान लिया जाए ज़्यादा जानते हैं। छोटे बच्चे समझते हैं कि बस ट्रेन की तरह etc भी कोई जगह होती होगी, कोई चीज़ होती होगी, तो etc भी लिख सकते। ऑन द अदर हैंड आप अपने बच्चे से सिर्फ ये बात करो क्लासरूम में कि बेटा हमको लगता नहीं ये वाला पढ़ा दिया गया था, बस यही सही है, तुम 2 into 1, और इसका भी सही आता नहीं लोगों को। सम और सही से बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 आप क्या बोलते हो उसको 2 2 ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होती। करेक्ट लैंग्वेज है 2 2s are 4, जो हम बोलते नहीं है, बच्चा कोई काम नहीं करता, वही हम खराब बोलते हैं, खराब करके बोलते नहीं जाते बच्चों के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट में आए हम 2 2s are 4, इसका मतलब ये एडिशन मेथड भी पॉसिबल, अगर 2 2 ऐड कर देंगे हम तो 4 आ जाएगा, है ना, और 2 3 2s ऐड करेंगे हम 2 2 तो 6 आ जाएगा। तो यही टेबल्स जो इस तरह से आप पढ़ाते हो अल्टरनेटिव मेथड्स में एडिशन से पढ़ा सकते हो और कई मेथड से पढ़ा। जब 2-3 साल के बाद आपको अपना सब्जेक्ट याद हो जाए, आपको अपना सिलेबस याद हो जाए, आपको अपना कंटेंट बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, फिर ट्राई करिए मेथड्स, फिर वो पुराना वाला एडिशन मत बनेगा। एक अच्छा टीचर बनने में समय लगता है, बार बार बोलता हूँ, लास्ट में थॉट होगा कि कितना टाइम लगता है, तो प्रूव करके बताऊँगा। अब इस तरीके सिखा रहा हूँ कि जितने समय मिलता है, जितने मेथड्स सुनते हैं तो हमेशा एक्सेप्ट करो, इनको अस्वीकार मत करो। हमारे टीचिंग सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें जैसे एग्जाम में लिखना है, हमें डायरी भरनी है, तो हम इतना यूज्ड हो जाते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों को ट्राई करने के लिए कभी चांस मिलता नहीं। और मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ 40 मिनट के पीरियड में इफेक्टिव टीचिंग सिर्फ 20 से 25 मिनट होती है। बाकी 15 मिनट आप बच्चों से बात करो, सीट तक जाओ, तो बुक्स देखो, क्लास वर्क देखो, कॉपी में नोट कर रहे हैं, काम पूरा हुआ है, पिछले दिन का काम पूरा हुआ है, सारी चीज़ें जानो उनसे, रिलेट करो उनसे, तब आप अच्छे टीचर बनने की यात्रा में चल पड़ो। हमारे स्टाफ रूम डिस्कशन का हिस्सा होने चाहिए, और हम लोग बात करना पसंद नहीं करते, करनी चाहिए। हर रोज से गुजरता हूँ, कभी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो मेरे लिए वो थॉट्स होते हैं डिस्कशन में। टीचर क्लास में पढ़ा रही, सीनियर टीचर ने फैमिली बहुत सालों से पढ़ा रही, उन्होंने कहा क्लास में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मैं कह रही हूँ हाँ, ये एक अध्यापक के शब्द नहीं, उसे मैं कह रही हूँ लिख लो, मान लो, समझ लो, याद कर लो, ऐसा कोई थॉट है नहीं। आप बचेज हैं, बराबर बताओ उनको 12 से 1 से 12 तक लिखते हैं, 1 से 2 के बीच में 5 खाने हैं, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, इसलिए 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट, इसलिए 1 घंटे में 7 मिनट। लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल बातों के लिए इलॉजिकल वर्ड्स यूज मत करो। हर वो चीज़ जो लॉजिक से रीजनिंग से पढ़ाई जा सकती है उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मान
यहाँ पर नहीं बंदी क्या, नहीं बंदी ड्रा कर देते हैं, क्लासरूम में लगी होती वहाँ से सिखा देते हैं, नहीं है तो मंगवा लो ऑफिस से, वहाँ सिखा दो। लेकिन इस तरह की भाषा, अध्यापक की भाषा नहीं होती। Wherever reasoning, logics can be used, use them thoroughly just to create a good impression on child. तो बच्चे के दिमाग में चीज भर जानी चाहिए। हमारे डूज और डोंट्स क्लियर नहीं होते क्लास में। हम बच्चों को हमेशा बताते हैं ये मत करो, हम ही नहीं बताते क्या करो। हम बच्चे को घर में डांटते हैं टीवी मत देखो, हम ये नहीं बताते क्या देखो, है ना। क्लास में लड़कियां बड़ी हो गई होती हैं, हमको डांट देते हैं तुम ऐसे कैसे बैठो, पैक करके बैठो, ऐसे मत बैठो। हमको बताने की कोशिश नहीं करते हैं कैसे मत बैठो बेटा, अंडर गार्मेंट सीखते हैं हमारे सामने से, ये बोलते हैं। उनकी काउंसलिंग हो गई है, कॉल देम इन सेपरेट, मेक देम लर्न अबाउट दैट, व्हाट शुड बी अ गुड पोस्चर इन द क्लास। क्या करना है, मैंने बोला था वर्जित विषय, ये वर्जित विषय हम बात नहीं करते इसमें, मैं बिल्कुल बात करता हूँ बच्चों से भी, अपने सीनियर स्टूडेंट से भी, अपने टीचर से भी, ह्यूमन स्टाफ से। हमारा सारा जोर डोंट्स पे है, डूज पे नहीं। नकारात्मकता हमें दूर ले जाती है। आप किसी उद्यान में 15-20 साल पहले गए हो और आज जाइए, उनके नोटिफिकेशन में डिफरेंस है। 20 साल पहले वो लिखते थे बाग में फूल तोड़ना मना है। आज आपको किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में ये शब्द देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? फूल बाग की सुंदरता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और फूल तोड़ना मना है, ये नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मकता आपको आमंत्रित करती है क्या हो कुछ खराब करो। आपने देखा होगा जहां सड़क पे बोर्ड लगे होते दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आपने गाड़ी से पास हो आगे पटपटा हो गया डांटे, क्यों आमंत्रण देता है। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र जैसे आपने देखा आपका स्पीडोमीटर आपका स्पेशल कुछ माइंड सेट में गड़बड़ हो जाता है, यार दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी संभाल के चलाओ, बस हो गया काम आपका। और उससे पहले आप 100 किलोमीटर से आगे गाड़ी आ रहे तो उसी को जब आप कहीं किसी सोशल जगह पे देखते हो या लिखा होगा पाम छूटना मना है, वो उसी को ऊपर पाम छूटते है ना। ऐसा स्कूल कॉलेजेस में भी नकारात्मकता हमें खींचते ही अपनी तरफ, वो सारे खराब काम करने। कभी जितने भी एडमिन्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपने किसी भी लेखन, और आपको भी एडवाइस दे रहा हूँ, जब आपको पेरेंट्स से कोई वार्तालाप होता है तभी कोई नकारात्मक संदेश नहीं, ठीक है। आप मत लिखें कि बच्चे की फीस मानी हुई तो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, मत बोलें। आप उसको बोलें कि एग्जाम से पहले स्कूल फीस ना करें, काइंडली पे योर ड्यूज बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, बट नेवर राइट दिस सेंटेंस कि अगर बच्चे की फीस मानी हुई तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। हम तरह दो बातों में बात नहीं कह रहे हैं, निगेटिविटी खींचते हैं आपको, आओ कुछ गलत करो, बचिए उससे। एक बार हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते बच्चों को और बच्चे की कॉपी में लिख देते हैं और कंप्लीट लिख देते हैं, कंप्लीट होगा, है ना। और बच्चे ने काम कंप्लीट कर लिया,